हालेलुया हालेलुया। आओ सारे अपनी अखां नूं बंद करिए ਅਤੇ खुदावंद दे खुदा दा धन्नवाद करिए जिसने सानू आज दिन दिखाया। बहुत सारे लोग आज का दिन देख नहीं सके, लेकिन ये ਉਹਦੀ दया ते कृपा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ दया ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। आओ अपने सारे मनां ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ पसंद आवे। साडा इत्थे आउणा अते उहदे लई गाउणा वजाउणा उहदे नाम नूं उच्चा करना उहनूं पसंद आवे, क्योंकि उहदा वचन कहंदा है कि वो लभदा है इस तरह दे लोकां नूं जो रूह ते सच्चाई दे नाल उहनूं लभदे ने, उहदे नाम उच्चा करन दे लई उहदे नाम नूं ध्याउंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ कोई वड्डी लियाकत नहीं, कोई भलाई नहीं, या किसी कीते हुए चंगे काम द्वारा नहीं असी आप इत्थे आए। ये तुहाडी दया ते तुहाडा रहम है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुहाडा शुक्र ते तुहाडा धन्नवाद होवे। इस इबादत नूं करन विच साडी मदद ते सहायता करना, सानू अपने पाक रूह दे नाल भरना पिता, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਈਏ ਵਜਾਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
ਉਹਦਾ 9 ਬਾਬ ਅਤੇ 9 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे सिय्योन दिए धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम दिए धीए ललकार, वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आंदा है, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, पूरे मन के नाल, पूरे जोश के नाल। हालेलुया हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं।
और नीचे ना हटूं। तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू ही मेरी भाषा, तू ही मेरा स्वाद, तू ही ना होगा तो मैं ना होता। तू ही मेरी भाषा, तू ही मेरा स्वाद, तू ही ना होगा तो मैं ना होता। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा स्वाद, तू ही ना होगा तो मैं ना हमारे बीच मेरा हमारे बीच में मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। और नीचे ना हटूं। और नीचे ना हटूं। और नीचे ना हटूं। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਦ ਅੱਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਐ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਐ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ 12 ਚੇਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਈਏ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे ओ मैं खुश होया जदों
अदालत दे तख्त ते दाऊद दे सारे घराने दे तख्त। हालेलुया। असी दाऊद दे घराने दे विच प्रभु यीशु मसीह दे जरिए आए हैं। हालेलुया। किन्ने जने आनंदित हैं? हालेलुया। उच्ची जने अपनी आवाज नाल दसिए हालेलुया दा नारा लाउंदे हुए। किन्ने जने खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने सानू अपने नाल जोड़िया। ये सिर्फ ओदी रहमत ओदी दया आ। कहंदा मैं इसलिए आया तां जो जड़े बीमार चंगे होण, लूले चलन, अन्ने अखां पाउण। सिर्फ वो कल्ले फिजिकल चीजां दी नहीं गल्लां करदा। ओ जेड़े मनां च जेड़े दुखी आ, जेड़े किसी नूं दुख दस नहीं सकदे, अपना शर्म करदे आ जदों दूजे नाल गल मैं किद्दां करां। हालेलुया। वो कोई भी गल हो सकती है, लेकिन वो कहता मैं तुहाडी दूर करन जा रहा हां, क्योंकि मैं इस दुनिया च रूप धार के आउण दा रहा। यीशु मसीह हालेलुया इंसान बन के जदों आया तां जो वो सारी सृष्टि लई एक काम करे, नजात दा काम। हालेलुया। वो किसी धर्म नूं नहीं बनाउंदा, वो सिर्फ जीवनां नूं बदलदा आ। वो खुद कोई धर्म नहीं आ, वो खुद परमेश्वर है जिहड़ा अपने लोगों को जिन्हें मिट्टी तो बनाया उन्होंने बुलाउण आया कि आओ मैनू जानो ते मेरे पीछे चलो, मैं तुहानू नजात देवांगा। हालेलुया। ओहदा वचन कहंदा जिथे मैं तुसी भी होवोगे। हालेलुया। इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਂ। सिर्फ इस करके नहीं कि एक ट्रेडिशन है, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕੀਏ। सिर्फ मत्था टेकन तक ये सिर्फ सीमित नहीं है। और कहंदा तू मेरे नाल नाल चल, मैं तेरे नाल नाल चलूंगा। हालेलुया।
नाल नाल चलण दा मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਰਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਟਨੈਸ ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਲਵੰਤ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਆ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਗ ਕੇ ਸਾਗਰੀ ਬਲਦੀ ਅਗ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰੀ ਬਲਦੀ ਅਗ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਹੇਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੇ। आइए सब अपनी अखंड बंद करेंगे। खुदावा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आद और अंत अल्फा और ओमेगा है प्रभु। आपके तुल्य और कोई पवित्र नहीं, आप जीवित हैं प्रभु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस हजूरी के लिए प्रभु, आपके आत्मा के लिए बड़े आभारी हैं प्रभु। जब आपने अपने आत्मा से हमें दिया कि हम प्रेम और सामर्थ में बढ़ते चले जाएं प्रभु, तेरे आत्मा में बड़े हम तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए। जब आपने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया है प्रभु, इस अच्छे और भले सुंदर दिन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस पाम संडे के लिए हम तेरे धन्यवादी हैं प्रभु, जब आप यरूशलेम में आए प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सारे आगमन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि अब ये पाम संडे प्रभु सिंहासन के सामने हो प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य कि वो जातियां, वो कुल, वो भाषाएं वाले लोग चुने गए कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने डालियों को लेकर उसकी होसैना और उसकी महिमा करे प्रभु। हमें तो अपनी दया से, अपने अनुग्रह से बचा प्रभु, ताकि वो डालियां इस स्थान में नहीं, हम तेरे सिंहासन के सामने लहराते हुए तेरी महिमा करने वाले बने। हे परमेश्वर यहोवा, तू दया कर प्रभु, हमारे मनों को बदल के अपने सारे बुरे कामों से फिरकर हम तेरी आराधना और तेरी महिमा करने वाले बने। बुराई को नहीं बल्कि पिताजी जीवन को पाने वाले बने। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपका भय मानना बुद्धि का मूल है। आपका वचन कहता है कि जितने यहोवा का भय मानते हैं वो अनंत जीवन को पाएंगे प्रभु। तेरा वचन हमारे लिए जीवन है प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए मार्ग है प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तो अपने दास के ऊपर प्रभु अपने आत्मा का दुगना मसा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जैसे पतरस के द्वारा प्रभु 3000 का मन बदल गया, इस समय प्रभु ऐसे वचनों के, ऐसे शब्दों को दे प्रभु कि हमारे मन तेरी महिमा में और बढ़ने लगे प्रभु। नौजवान बदले प्रभु, बच्चे तेरी महिमा करने वाले बने। तेरा धन्यवाद करते इस चर्च के ऊपर प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। परमेश्वर के वो सारे हथियारों को हम पहनकर प्रभु शैतान की सारी युक्तियों का सामना करने वाले बने। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सारे समय को, एक एक जन को, तेरे दास को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमें अपने आत्मा वाले कान दे प्रभु, और सीखने वाला मन दे के तेरे वचन में हम बढ़े। इस प्रार्थना को सुनने और ग्रहण करने वाले अच्छे और भले पिता, आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और मैं ब्रदर पाजी राजू ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। हैप्पी पाम संडे आप सबको। जी आप सब जो खुदा का कलाम लेके आए हैं वो खोल लें, ताकि हम जल्दी से टाइम के नजात को समझें। तो आप सब बाइबल लाएं, मेरा ईमान है कि आप सब बाइबल लेकर आए। हालेलुया, आमीन। सो मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत। सो खोल लें, जिनके पास खुदा का कलाम है और जिनके पास नहीं है वो गौर से सुने। लूका रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, जिनके पास बाइबल नहीं है वो बड़े गौर से सुनिएगा। उसमें यूं लिखा है, जब वह जैतून नाम पहाड़ पर, यानी यीशु मसीह, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे
और बैतनिया के पास पहुंचा। यानी ये एक सफर है जो यरीहो से शुरू हुआ। तो यीशु मसीह जा रहे हैं, जैतून का पहाड़ है, सफर जारी है, मोजज़े हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं। तो जब ये सफर शुरू हुआ यरीहो से, तो एक जैतून नामक पहाड़ पर, उसके बाद बैतफगे यानी जिसे हम कहते हैं खजूरों का घर, और उसके बाद बैतनिया के पास पहुंचा। बैतनिया का मोजज़ा जो यीशु मसीह ने किया, तकरीबन आखिरी मोजज़ा था जिसने सबको हिला के रख दिया। आप जानते हैं कि कौन सा मोजज़ा हुआ था बैतनिया में? हालेलुया। वो ऐसा मोजज़ा था कि जब लाजर को जिंदा किया तो बहुत सारे लोगों ने इस मोजज़े को देखकर यीशु के पीछे हो लिए थे। तो ये सफर जो जारी था, जो यरीहो से शुरू हुआ था, तो आगे यूं लिखा है, पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका क्या है, जरूरत है, प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, यानी कि जब ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो ये जो नीचे की तरफ था शहर, लिखा है ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े बुलंद आवाज से खुदा की क्या करने लगे, तमजीद करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यानी वो जबूर 118 की 26वीं आयत ऑटोमेटिकली उनके मुंह से क्या होने लगी, कलाम निकलने लगा। खुदा की क्या हो, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में क्या हो, महिमा हो। 29वीं आयत, तब भीड़ में से, गौर से सुनना है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी, एक ऐसा ग्रुप भी था बीच में, भीड़ में फरीसी उससे कहने लगे, यानी यीशु से, हे उस्ताद, अपने चेलों को क्या कर, डांट। क्यों डांट? फरीसी कहने लगे, अपने शागिर्दों को डांट। क्यों डांट? क्योंकि जो ये कलाम बोल रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी तमजीद कर रहे हैं, वो तू मसीह नहीं है, वो आने वाला तू मसीह नहीं है। इनको रोक ताकि वो तेरी महिमा ना करें। आगे सुनिए। तो यीशु ने उनसे जवाब में कहा, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला
उठेंगे। हालेलुया। क्या दिया यीशु ने जवाब? यदि ये चुप हो गए तो क्या करेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। आगे इसके बारे में हम सीखेंगे। मैं इसको पूरा कर लूं। आगे 41वीं आयत, सीन जो है एकदम बदल जाता है। सीन जो है एकदम बदल जाता है। अब वो यरूशलेम के पास पहुंचे हैं। 41वीं, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब वो नजदीक पहुंचा, यरूशलेम को देखकर क्या हुआ? उस पर रोया। बड़ा जोरदार लफ्ज है जी, रोया। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में किसकी बातें जानता? कुशल की बातें जानता, सलामती की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब वह तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। जब तुझ पर निगाह की गई तो तूने उस अवसर को नहीं पहचाना। तो ये जो वाक्य है मत्ती रसूल की अंजील में भी लिखा है, उसमें भी पढ़ेंगे हम। उसकी 21वां चैप्टर बाब और उसकी 4थी आयत में यूं लिखा है। आज देखेंगे कि मुआयना करेंगे कि किसने क्या लिखा है। मत्ती की भी अंजील में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है। आज देखेंगे उसमें यूं लिखा है, मत्ती 21वां बाब और उसकी 4थी आयत, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। इसके मायने क्या हुए? जो बादशाह है, जब बादशाह घोड़े पर बैठता था तो इसका मतलब होता था कि वो जंग का ऐलान कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर यह पैगाम दिया, यह संदेश दिया कि ये जो हस्ती गधे पर बैठी है ये जंग नहीं, ये सुलह चाहती है। हालेलुया। ये शांति का पैगाम लेकर आया है, ये अमन का पैगाम लेकर आया है, ये जंग का पैगाम नहीं लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह गधे पर सवार होकर क्या हुआ? जब पास आया वह नम्र है और गधे पर बैठा है। और 9वीं आयत, और जो भीड़ आगे आगे जाती थी। आज भीड़ का मुआयना भी करेंगे। भीड़ 2 तरह की है, देखेंगे कलाम में। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, बुलंद आवाज से क्या कर रही थी? उसकी स्तुति कर रही थी। कि क्या कर रही थी? कि हे दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। होशाना का मायने है, यह इब्रानी और अरामी का लफ्ज है, जिसका मायने है कि खुदा हमें क्या करे? बचाए, हमें छुटकारा दे, खलासी दे, आजादी दे। किससे? रोमी सल्तनत से। वो एक ऐसे भीड़ जो उसके साथ चल रही थी, वो एक ऐसे बादशाह की तरफ अपनी निगाह लगाकर बैठी थी कि वो उन्हें रोम की सल्तनत से क्या करे? आजादी दे। वो भीड़ नारे लगा रही थी, मार्ग में कपड़े बिछा रही थी, खजूर की डालियां बिछा रही थी। और मरकुस की अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है। अब मुआयना करेंगे सभी अंजील्स का।
और उसमें यूं लिखा है, मरकुस 11 और उसकी 9, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे कि होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसना। यूहन्ना 12 बार और उसकी 12वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो परम में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यानी जकरिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत और जबूर 118 की वो तलावत करने लगे। हालेलुया। ये जो लूका रसूल ने नोट किया है या बयान किया है वो इन सबसे बेहतर है। आज ये मैंने आपके मत्ती रसूल का भी पढ़ा, मरकुस रसूल का भी पढ़ा, यूहन्ना रसूल का भी पढ़ा, अब वापस लूका रसूल की अंजील पर आएंगे। उसने इसके बारे में ज्यादा मालूमात दी है। लूका रसूल की अंजील और उसी का 19वां बाब और उसकी 39वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे। मैंने पहले बयान किया कि जब वो भीड़ चल रही थी तो उनमें एक ऐसा ग्रुप था जो हैकल के काहिन भी थे, फरीसी लोग उस भीड़ में चल रहे थे। तो क्या कहने लगे कि हे उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। क्यों डांट? कि जिसकी वो तमजीद कर रहे वो तू नहीं है, इसको डांट, इनको चुप करा। तो यीशु मसीह जवाब देते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। ये आयत जो है बहुत बड़ा मैसेज देती है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तुमने कभी नहीं सुना कि पहाड़ें उसकी स्तुति करेंगी, तुमने कभी नहीं देखा ना सुना कि पत्थर उसकी तमजीद करेंगे। अगर एक गधी बोल सकती है, हालेलुया, गधी बोल सकती है तो पत्थर भी उसकी तमजीद कर सकते हैं। हालेलुया। बालाक और बिलाम का पता है, बिलाम की गधी बोल गई। अगर गधी बोल सकती है तो पहाड़ भी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, पत्थर भी उसकी तमजीद कर सकते हैं। यह आयत बताती है कि जब भीड़ चल रही थी तो इससे यह मालूम होता है कि कायनात का बनाने वाला चल रहा है। हालेलुया। अगर इंसान चुप हो जाएंगे तो पत्थर और पहाड़ उसकी तमजीद, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। तुमने कभी नहीं सुना कि पहाड़ें उसकी तमजीद करती है। अगर पहाड़ें उसकी तमजीद करने लगी तो हो सकता है कि भीड़ भाग जाए। खुदा कहता है अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। अब आ जाए 41वीं आयत। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ये रोया जो लफ्ज है इसका मायने है कि हिचकियां लेकर रोना, तड़प रखना, यही रूहों की बचाने के लिए, रूहों की शिफा के लिए, रूहों की निजात के लिए तड़प रखना, भूख रखना, ताकि यीशु मसीह ये चाहता था कि हर शख्स क्या करे, बचाया जाए। जो कोई उस पर ईमान लाएगा नाश ना हो बल्कि क्या हो, हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि कराहना, ऊंची ऊंची चिल्लाना, रोना, अपना दुख प्रकट करना, इस तरह से यीशु मसीह रोए। वो रूहों को बचाना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि कोई भी रूह नाश हो। तो यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर क्या हुए, रोए और कहा, क्या
भला होता। जोरदार लफ्ज है ये। खुदा फरमाते हैं क्या काश, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में सलामती की बातें जानता। सलामती की बातें क्या है? ये खुदावन का जिंदा कलाम है। हालेलुया। ये सुलह की बातें हैं, सलामती की बातें हैं। खुदा कहता है काश तू कुशल की बातें जानता। भीड़ यीशु के साथ चल रही थी, पर मायने में असल में वो ऐसे बादशाह की तलाश में थे, ऐसे राजा की तलाश में थे, ऐसे सियासी बादशाह की को ढूंढ रहे थे जो उन्हें रोम की गुलामी से क्या करे? आजाद कराए। वो सियासी बादशाह ढूंढ रहे थे, पर यीशु मसीह ऐसा सियासी बादशाह नहीं था। वो उससे भी बढ़कर क्या था? बादशाह था। वो चाहता था उससे पहले उनकी रूहों को उस गुलामी से, उस शैतान के कब्जे से, अंधकार से क्या करे? निकाल दे। हालेलुया। वो जो भीड़ थी वो चाहती थी कि हमारा सियासी बादशाह हमें आएगा और हमें क्या देगा? छुटकारा देगा। पर वो ये नहीं जान सके कि खुदावन जो उनका बादशाह है, जो भीड़ नारे लगा रही है, हम्द कर रही है, होसना के नारे ला रही है, धन्य कह रही है, वो नहीं जानती थी कि ये बादशाह उन्हें गुनाहों से क्या करेगा? नजात देगा। इब्लीस के पंजे से उन्हें आजाद करेगा। तारीकी से, अंधकार से क्या देगा? खलासी देगा। हालेलुया। वो भीड़ सियासी ढूंढ रही थी। आज भी जब गिरजे में लोग नारे लगाते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, वो उनके अपने क्या होते हैं? एजेंडे होते हैं। उस भीड़ का भी अपना एजेंडा था कि हमें क्या करेगा? खलासी देगा, आजादी देगा। पर उस मकसद को वो नहीं समझ सके जो यीशु मसीह उस भीड़ के लिए रखता था। तो यीशु मसीह ने इसीलिए कहा काश तू खुला की बातें जानता। यीशु मसीह रोया क्योंकि वो यीशु मसीह के उस मकसद को ना जान सके। हालेलुया। वो भीड़ नारे लगा रही थी, पर हकीकत में वही भीड़ कुछ दिनों के बाद क्या कर रही थी? पिलातुस के सामने कह रही थी इसको सलीब पर टांग दो। यानी वो लफ्जी थे, झूठे थे नारे। आज भी हम देखते हैं अक्सर लोग हालेलुया धन्यवाद करते हैं, पर वो उस मकसद को नहीं जानते। वो जो नारे हैं वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते। हालेलुया। वो नारे सिर्फ लफ्जों के ही होते हैं। लफ्जों से हम उसकी तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं। उस मकाशवे को, उस भेद को, उस मिस्ट्री को, उस प्रकाशन को हम नहीं समझते। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं क्रिसमस पर ही देखता हूं, और जब देखता हूं, आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, ऐसे नारे लगाएंगे जैसे ये भीड़ नारे लगा रही है। और यही भीड़ कुछ दिनों के बाद कहती है यीशु को सलीब पर चढ़ा दो। आज उस मकसद को हम नहीं पहचानते कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, वो इसीलिए आया कि हमें इब्लीस के चुंगल से आजाद करे। वो हमारी रूहों की क्या चाहता है? नजात चाहता है। वो हमारी रूहों का छुटकारा चाहता है, आजादी देना चाहता है हमें। हालेलुया। 43 आयत, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ऐसा मौका आएगा जब तेरे वैरी तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, क्योंकि तूने सुलह की बातों पर ध्यान
नहीं लगाया। आज अक्सर कहा जाता है, पास्टर जी हर बार बोलते हैं, पैगाम कलाम लेकर आए हो, खुदा का कलाम जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें क्या करता है, हमारी आत्मिक उन्नति करता है, हम नहीं लाते। कलाम में लिखा है, ना ज्ञान के होने से मेरे लोग क्या हो गए। कहीं नहीं लिखा ना दुआ करने से नाश हुए, कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने मेरी तमजीद नहीं की ये नाश हो जाएंगे। कलाम में लिखा है ना ज्ञान की वजह से ये लोग बर्बाद हो गए। इन्होंने सुलह की बातों पर क्या किया, ध्यान नहीं दिया। इब्रानियां 10 बाब और उसकी 29वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, इब्रानियां 10 बाब हिब्रू 10:29, उसमें यूं लिखा है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। गौर से सुनना है, इब्रानियां आराम से निकाल लें, और उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं आयत, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने खुदा के पुत्र को पांव से रोदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का क्या किया, अपमान किया। कितने भारी दंड के योग्य क्या वो ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पांव से रोदा। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 18वां आयत, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 18 आयत, उसमें यूं लिखा है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं। गौर से सुनिए, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे क्या की है, बार बार की है, और अब भी क्या करता हूं, रो रो कर। पौलुस कहता है कि मैं रो रो कर बेनती करता हूं। हालेलुया। फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। पौलुस रसूल फिलिपियों को कहता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार करता हूं और अब भी रोक रोक कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के वैरी हैं। किसमें? अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। हालेलुया। उनका अंत क्या है? उनका ईश्वर, उनका खुदा पेट है, यानी हवस, उनका लालच, उनका ईश्वर यही है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और किन चीजों पर मन लगाते हैं? और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखिए, किन चीजों पर मन लगाते रहे? दुनिया की चीजों पर मन लगाए रहते हैं। वो भीड़ भी यही थी, वो चाहती थी कि हमें सियासी बादशाह मिल जाए। जब भीड़ चल रही थी, मत्ती रसूल की इंजील में भी पीछे जाएंगे, हम देखेंगे, वो समझती थी कि सियासी बादशाह है, हमें रोम से खलासी देगा। आज भी बहुत सारी भीड़ में वो ऐसे खुदा को ढूंढते हैं जो उनकी मनमर्जी का खुदा है। हालेलुया। वो ऐसे खुदा को ढूंढते हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनके अपने मंसूबे हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे एजेंडे हैं, जो हमारे मंसूबे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उसके मुताबिक यीशु काम करे।
ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਗੜਿਆ, ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, रगड़िया, घर चाहिए, मिल गया। आज भीड़ इस तरह के यीशु को ढूंढती है। हालेलुया। वो जिस्म की चीजों पर, दुनिया की चीजों पर, धरती की चीजों पर मन लगाए रहते हैं। आज भी भीड़ इस तरह की है। हालेलुया। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, 43वीं आयत, वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। लूका रसूल 19वां बाब और उसकी 43वीं आयत, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर निगाह की गई ना पहचाना। हालेलुया। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा 44 आयत, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर निगाह की गई ना पहचाना। अजीजों, आज हम पर निगाह की गई है। आज हम उसका कलाम सुनते हैं तो उसकी इज्जत करें। हालेलुया। एक समा आएगा जब यीशु मसीह ने जब नबूवत की कि तुझ पर भी पत्थर नहीं छोड़ेगा, छोड़ा जाएगा, सब बर्बाद कर दिया जाएगा, सत्यानाश कर दिया जाएगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर निगाह की गई, दृष्टि की गई, तूने उस अवसर को ना पहचाना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो नबूवत की थी तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। रोमी सल्तनत ने उस हैकल को बर्बाद कर दिया। अजीजों, ये हमारे और आपके लिए भी है। आज अगर हमने उस अवसर को, उस टाइम को जो बहुमूल्य है, जो कीमती है, उसकी कदर नहीं की, तो जो उस पर ईमान ना लाएगा वो क्या होगा? बर्बाद होगा। जो यीशु ने कहा था वैसे ही हुआ। आज हमें जागने की जरूरत है। नारे हम कौन से लगाते हैं? एक भीड़ और है। आइए मकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 9 आयत से देखें। मकाशवा बुक ऑफ रेवल्यूशन, उस भीड़ का जिक्र है। पुराने ऐतनामे में एक और भीड़ का जिक्र है। मकाशवा की किताब 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग, यानी सब जातियों के लोग और हर भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे खुदावन की जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार हो। यह भी एक भीड़ है जो कहां है?
आसमान पर है। वो भले की क्या कर रही है? तमजीद कर रही है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। सब स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। खड़े होकर क्या कर रहे हैं? उसकी तमजीद कर रहे हैं। कई बार भाई साहब को बोलना पड़ता है, खड़े हो जाओ, जो खड़े हो सकते हैं उसकी तमजीद करें। हालेलुया। भाई साहब को जोर लगाना पड़ता है, खड़े हो जाए जो हो सकते हैं। कई बार ऐसी बैठे लेते हैं। पढ़ लें यहां लिखा क्या है, क्या कर रहे थे। और 11वीं आयत, और सारे स्वर्गदूत उन सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दंडवत करके कह रहे हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और समर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा यीशु। हालेलुया। और ये है हमारा यीशु। एक भीड़ जो धरती पर उसकी स्तुति करती है और एक ऐसी भीड़ है जो स्वर्ग में उसकी, आसमान पर उसकी क्या कर रही है? तमजीद कर रही है। हालेलुया। आज इस धरती पर एक कलीसिया तैयार हो रही है जो एक दिन सिंहासन के सामने खड़ी होकर भी उसकी क्या करेगी? तमजीद करेगी। हालेलुया। आइए आखिरी हवाला मत्ती रसूल की अंजील, उसमें से कुछ सीखेंगे। मेरा टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है। उसमें देखेंगे मत्ती रसूल 21वां बाब। जल्दी से मायने सीखेंगे हम पाम संडे के, क्या मैसेज है हमारे लिए। 21 और उसकी मत्ती रसूल 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत। सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। गौर से सुनना है। और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यीशु ने क्या कहा? जाओ, गधी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह उस गधी के बारे में सोच रहे हैं जो बंधी हुई है। वो चारों तरफ इसी तरह इस तरह चक्कर लगाती है, घूमती रहती है। खुदावन उस गधी से को कितना मोहब्बत करता है, और मैं और आप को क्या है? उसकी सूरत पर बने हुए हैं। अगर वो उससे मोहब्बत कर सकता है तो मुझसे और आपसे भी मोहब्बत करता है। हालेलुया। खुदा ने कहा उसे खोलो, बंधी हुई है और उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। आज खुदा चाहता है कि आप जिस भी चीज से बंधे हुए हैं, जिस भी हालात से बंधे हुए हैं, यीशु चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वो आपको खोलना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई उसका पैरोकार, उससे मोहब्बत करने वाला, उससे जो लिपटा हुआ है, किसी भी चीज से बंधा रहे। खुदा चाहता है कि हर शख्स आजाद हो जाए। जो बेटा जिसे आजाद करेगा, बोलिए बोलिए, वो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। खुदा गधी को खोलता है, खुदा मुझे और आपको भी खोलना चाहता है। आज जिस भी हालातों में बंधे हुए हैं, खुदा आजाद करना चाहता है। हालेलुया। तीसरी आयत, यदि तुमसे कोई कुछ कहे। यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो।
और उसकी 6ठी आयत मैं जल्दी से करूंगा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चों को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। यह आयत हमें बताती है कि वो जो गधी थी वो उस समय उस मालिक का कह सकते ट्रकी था, बिजनेसी था। वो सामान ढोते होंगे, सामान लेते जाते होंगे, पैसा कमाते होंगे। पर जब शागिर्दों ने जाकर कहा कि खुदा को इसकी जरूरत है, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं की, वो खोलकर यीशु को दे दी। हालेलुया। क्या आज मेरी और आपकी वो स्पिरिट है कि हम अपना सब कुछ यीशु को दे दें? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? मैं नहीं, आज अपनी जांच करें, जांच करें किस तरह हम अपनी चीजों को यीशु को देते हैं। कलाम में लिखा है जो कुछ धरती पर है वो सब कुछ खुदा फरमाता है मेरा है। तो असी की कहते हैं सारा कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। उच्चे महल चुबारे तेरे, ऐसी है जी की सारे इत्थे रह जाने। अयूब कहता है इंसान नंगा आया और नंगा ही वापस चला जाएगा, सब कुछ यही छोड़ जाएंगे। भीड़ जो नारे लगा रही थी वो उस मकसद को नहीं पहचान सके जो यीशु मसीह उनके लिए रखता था। यीशु उनकी रूहों की नजात चाहता था, शैतान के बंधन से उन्हें आजाद करना चाहता था, अंधकार से आजाद करना चाहता था, डिप्रेशन से आजाद करना चाहता था, अंधकोर की ताकतों से आजाद करना चाहता था। वो चाहते थे कि हमारा सियासी बादशाह जो हमें क्या करेगा, आजाद करेगा। जब मत्ती की अंजील पढ़ते हैं 21वां बाब, जब भीड़ नारे लगा रही थी तो उनके पता किसी ने पूछा ये कौन है? अब भीड़ नारे लगा रही है, उनकी थियोलॉजी देखिए। आइए मेरे साथ आखिरी हवाला मत्ती 21:10-10वीं आयत। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये भीड़ वाले हैं, लोग कहने लगे कि यह कौन है? लोग कहने लगे, मत्ती 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत, लोग कहने लगे ये कौन है? आप इनकी थियोलॉजी देखिए, आंसर सुनिए 11वीं आयत। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का नबी है। बस यही वो जानते थे कि यह गलील के नासरत का नबी है और कुछ नहीं जानते थे। हालेलुया। आज ऐसी भीड़ नहीं हमने बनना। मकाशवा की किताब जो उस सिंहासन के सामने उसकी तमजीद करती है, बर्रे की तमजीद करती है, उसकी तमजीद करती है, उसकी परस्तिश करती है। आज हमने उस भीड़ में बनना है। हालेलुया। जब तुझ पर निगाह की गई तूने उस अफसर को ना पहचाना। अजीजों, उस अफसर को पहचाने। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को जानिए। वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि हम गुनाहों से आजाद होकर नया जन्म पाकर, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मसीही हैं, मसीही क्या होता है? नया जन्म पाया हुआ, नई मखलूक बन जाए, नए इंसान बन जाए, फिर कहे मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। अपनी आंखें बंद कर लें, उसकी तमजीद करें। हालेलुया। उसकी परस्तिश करें। हालेलुया। वो अपने वादे के हमारे बीच में है, अपने वादे के मुताबिक। हालेलुया। उसकी हुजूरी इस जगह पर है। कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं
खुदा कहता है मैं उस जगह पर हाजिर होता हूं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। शुक्र खुदा दा मैनू यीशु ने ले गया है, शुक्र खुदा दा मैनू यीशु ने ले गया है, ओ शुक्र खुदा दा मैनू यीशु ने ले गया है, शुक्र खुदा दा मैनू यीशु ने ले गया है, ओ कटे आज खुशियां दा निकल गया है, कटे आज खुशियां दा निकल गया है, शुक्र खुदा मैनू
ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਪਲ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर जो भी वचन हमने सुना परमेश्वर, उस वचन को हम अपनी जिंदगी में पूरी तरह अपना सके। वो हमारे लिए 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। आज के चंदे के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जो आपके दिए में से आपके जनों ने दिया परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिस घरों से आया परमेश्वर, घर में 100 गुना फल लेके आना, हमारी गुना हमें माफी देना, सब दुआएं सुन सके पवित्र जलाली ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੈਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। जिन्हों करे खुदा बंदी चाहे ओ नीवियां नहीं रह सकदा जिन्हों आप जतावे यहोवा ओ कदे ना हर सकदा जिन्हों करे खुदा बंदी चाहे ओ जिन्हों करे खुदा बंद ऊंचा ओ नहीं रह सकदा है। जिन्हों करे खुदा बंद ऊंचा ओ नहीं रह सकदा है। जिन्हों आप जतावे यहोवा जिन्हों आप जतावे यहोवा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲੀ ਸਮਝੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पास्टर रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी प्रार्थना में साइड साइड आइए खुदा बाप ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आप दुआएं मांगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे हुई है जमीन पे हुई। सारे रोज़ आज संदे सारे सुसर मार जिस तरह से तुझे उसको माफ कर दिया। सारे मैं सुसरपा सारे मैं विचार कि वो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा और तो हमेशा बहुत शुक्रिया। इस बात में 6 साल धन्यवाद करते हैं थोड़ा सारे का। तो याद रखिए।